सब लोग आ गए हो? हेलो, हेलो, Yes. अभिषेक, am I audible? Hello. Yes, sir. सब आ गया? Yes, sir. ओके। Good morning to all of you. So today, madam is also here. Huh? So we will discuss first about the test. Then if you have any doubt, then you can ask me or madam also. Okay. So today we will perform the experiment, that is Venn shear test. First you tell me that why we are using the Venn shear test. What is the significance of Venn shear test? Anyone? Sayan, Abhishek, Ankit? What is the significance of Venn shear test? बोलो। Why we are performing the Venn shear test? Abhishek? Sir, Yes, to sir. measure the हाँ, कभी बोलो। पता नहीं sir सर. to me- sir to measure the undrained shear strength of cohesive soil. Undrained shear strength of cohesive soil. Okay. Basically, normally to determine the determination of shear strength of soil, how many tests are there to find out the shear strength of soil? बोलो। Triaxial shear test, direct shear test, Venn shear test, and unconfined Drain test. unconfined compression test. So these four tests we are performing to measure the shear strength of soil. Okay. The question बार बार पूछते कि तो एग्जाम में. Now the question is, there are four types of different tests to measure the shear strength of soil, depending on what? Depending on the type of soil. Is it clear? So different types of shear test is performing depending on the different types of soil. Like if we are saying that direct shear test is performing for which type of soil? Direct shear test is performing for which type of soil? Swati? किसी को आता है? पढ़ाई नहीं कर रहा, तुम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो. Direct shear test is performing to measure the shear strength of cohesion-less soil. Which type of soil? Cohesion-less soil. That is the sandy soil. Is it clear? Then next is triaxial test. Triaxial shear test is performing for both cohesive soil and cohesionless soil.
cohesive soil and cohesionless soil, or we can say the mixture of cohesive and cohesion, means that is sandy clay or silt. क्लियर? हाँ या ना रे? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा. Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर. Then next is unconfined compressive test. So we are discussing direct shear test, triaxial shear test, and third one is unconfined compressive test. So unconfined compressive test generally we are performing for clay soil, means cohesive soil. If the soil is fully cohesive or clay, then we are performing unconfined compression test. And last one is the Venn shear test. Venn shear test maximum time एक क्वेश्चन तुम लोग को सेमेस्टर में आया है. Venn shear test is performing for which type of soil? For which type of soil? Cohesive soil. Not cohesive soil. Cohesive soil के लिए हम लोग अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेशन भी कर सकते हैं. बोलो. Normally, soft clay. yes, soft clay. Soils having Soft clay. Venn shear test is specially used for saturated soft clay. Normal clay अगर होगा तो then we performing that unconfined compression test. Okay, if the soil is soft, means soil का condition properties क्या रहेगा? Saturated soft clay. Saturated soft clay means undrained cohesive soil. Undrained soft cohesive soil बोलना पड़ेगा. Undrained soft cohesive. Drain भी नहीं होगा प्लस सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट क्ले soil. ठीक है? In that condition we can performing the Venn shear test. Is it clear up to this? Any doubt? Different types of test and what are the conditions of soil? Is it clear to all? Yes, sir. Yes sir. Okay. yes, sir. So now we are discussing the Venn shear test. ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट shear test, ट्रायक्सियल टेस्ट बाकी जो सारे उन लोग भी कराएंगे. तो Venn shear test, रुक जा. So is it visible to all? दिख रहा Yes, है? sir. Yes sir. Okay. So determination of shear strength of soil by the Venn shear test. ठीक है? Which type of test? That is the Venn shear test. So normally what are the veins? See, the स्टील प्लेट. हाँ, स्टील प्लेट को ही ना वेन बोलते हैं. ये जो प्लेट्स है ना, हाँ सर, थिन स्टील प्लेट. थीन प्लेट एग्जैक्टली. जो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स कितना है? 4 नंबर ऑफ प्लेट्स अटैच्ड. देखो यहाँ पे
देयर आर टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स हाउ मच 4. तो 4 नंबर ऑफ थिन प्लेट अटैच्ड विथ ए रॉड, ठीक है, अटैच्ड विथ ए रॉड. सो दिस थिन प्लेट्स आर नोन एज द वेन्स, ठीक है. एंड these thin plates are welded orthogonally to each other, that is perpendicular, or we can say 90 degree angle कितना 90 degree to each other, ठीक है. तो in case of a Valencia test, the testing instrument is consist the 4 number of thin steel plates, and these steel plates are called as are vanes, ठीक है. चारों जो स्टील प्लेट दिख रहे हैं इसी को हम लोग बोलेंगे वेन्स. एंड दिस वेन्स आर वेल्डेड ऑर्थोगोनली टू ईच अदर. सर पीपीटी नहीं दिख रहा है स्टील सर. रॉड. हाँ, क्या बोल रहा है? सर पीपीटी नहीं दिख रहा है सर. नहीं दिख रहा है? हाँ सर. अब दिख रहा है? यस सर. यस सर अब क्लियर. नेट का कोई इशू होगा. तो मैंने क्या बोला? इज इट विजिबल? विजिबल टू ऑल? यस सर. ओके. यस सर. सो वेन्सियर टेस्ट, मैंने क्या बोला? वेन्सियर टेस्ट बेसिकली क्विक टेस्ट, ठीक है. वी आर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट आइदर इन द लैबोरेटरी और इन द फील्ड टू डिटरमाइन द अनड्रेन्ड shear strength of a soft clay soil, ठीक है. सो दिस इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. नाउ दिस आर द वेन्स. तुमको ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ चीज़. दिस आर द वेन्स. तो नंबर ऑफ वेन्स कितना है? 4 नंबर ऑफ वेन्स इज देयर. And these all the steel plate that the veins are welded to a steel rod. So now we will put a force in this steel rod, ठीक है. क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे स्टील रॉड अटैच है. कहाँ पे हम लोग टॉर्क पुट करेंगे? जो स्टील रॉड ऊपर जो हैंडल है, विल पुट ए टॉर्क ओवर देयर. क्लियर? क्लियर? कैसे होगा? कैसे टॉर्क प्रोवाइड होगा? कैसे हम लोग टॉर्क को प्रोवाइड करेंगे? बाय ए टॉर्सनल स्प्रिंग. जो रॉड है इसके साथ क्या रहेगा? अटैच ए टॉर्सनल स्प्रिंग. तो बाय यूजिंग दैट टॉर्सनल स्प्रिंग रोटेट, इफ वी रोटेट दैट हैंडल, ओके, देन स्प्रिंग जो टॉर्सनल जो स्प्रिंग है उसमें क्या होगा? टॉर्क डेवलप होगा. उसमें टॉर्क डेवलप होगा, हाँ या ना? देख इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ तुम लोग को. देखो बेसिकली दिस इज द वेन्सियर टेस्ट मशीन. दिस इज द वेन्सियर टेस्ट मशीन, ठीक है. तो ये जो पोर्शन है ना, दिस इज द वेन. स्मॉल जो पीसेस नंबर ऑफ प्लेट तुमको दिख रहे हैं, दिस इज द वेन. दिस वेन ये अटैच विद रॉड, और रॉड के साथ देखो यहाँ पे क्या है? एक स्प्रिंग है. दिस स्प्रिंग इज द टॉर्सनल स्प्रिंग. और ऊपर में जो एकदम ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या है? एक मोटर अटैच है, ठीक है.
मोटर को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, इसमें रोटेशन होगा, जो वेन है वेन घूमने लगेगा। क्लियर? हाँ या ना? इसमें अगर Yes, हम sir. करंट प्रोवाइड करेंगे तो जो मोटर ऊपर में मोटर घूमेगा, बहुत स्लोली मूविंग होगा। ठीक है? सो टॉर्सनल जो स्प्रिंग है, टॉर्सनल स्प्रिंग में रोटेशन क्रिएट होगा। तो ये तो टॉर्सनल स्प्रिंग में रोटेशन क्रिएट होगा तो क्या होगा, टॉर्क डेवलपमेंट होगा, और नीचे जो वेन्स है तो वेन्स विल स्टार्ट रोटेटिंग। क्लियर? ठीक है? तो नीचे हम लोग क्या रखेंगे, सॉइल को रखेंगे। मैं धीरे धीरे बताऊंगा तुम लोग को। नॉर्मल जो प्रोसीजर है, जो वेन्स है, वेन्स को हम लोग पुट द वेन्स इनटू द सॉइल। क्लियर? नाउ द टॉर्क, जो टॉर्क है यहाँ पे, द टॉर्क इज रोटेटेड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। द टॉर्क इज रोटेटेड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। द रोटेशन ऑफ द वेन्स या द सॉइल, जो यहाँ पे अगर रोटेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो सॉइल होगा उसमें सिलिंड्रिकल सरफेस क्रिएट होगा। रुक जा, देखो कैसे हो रहा है। ये मेरा वेन्स है, ठीक है? तो वेन, वंस द वेन विल स्टार्ट रोटेटिंग, तो उसका जो सरफेस है, तो कौन सा सरफेस क्रिएट होगा, सरफेस कैसे क्रिएट होगा, वेन जो है, वेन को मैंने क्या किया, सॉइल के अंदर डाल दिया। नाउ इट स्टार्ट रोटेटिंग, तो उसके साइड में क्या होगा, सिलिंड्रिकल सरफेस क्रिएट होगा। हाँ या ना? द रोटेशन ऑफ द वेन्स यार इनटू द सॉइल along with a cylindrical surface। यस सर। और ऊपर में नीचे क्या होगा, देखो टॉप लेयर और बॉटम जो लेयर है उसमें क्या, एक नॉर्मल सर्कुलर पोजीशन से क्रिएट होगा। साइड वाला जो पोर्शन है दैट इज ए सिलिंड्रिकल सरफेस, और ऊपर में जो पोर्शन है, नीचे भी तो पोर्शन है, टॉप फेस और बॉटम फेस है, होगा कि नहीं? ये अगर वेन्स है, ये सिलिंड्रिकल सरफेस में होगा तो इसमें सर्कल क्रिएट होगा। जो टॉप फेस रहेगा उसमें एक सर्कल क्रिएट होगा, जो बॉटम फेस होगा उसमें भी सेम एक सर्कल क्रिएट होगा। इज इट? यस सर। Yes, sir. तो नॉर्मली क्या होता है ना, जो सॉइल्स हम लोग लेते हैं एक सॉइल सैंपल, उसमें दो कंडीशन हो सकता है। आइदर तो वेन को हम लोग कंप्लीटली पेनिट्रेट कर सकते हैं सॉइल में, एंड द सेकेंड थिंग इज इफ द वेन इज पार्शियली पेनिट्रेटेड, मीन्स सपोज मान के चलो दिस इज द सॉइल सैंपल, दिस इज द सॉइल सैंपल। क्लियर? ये सॉइल सैंपल, तो विल पुट द वेन्स इनटू दिस। ठीक? नाउ वेन को अगर हम लोग इस तरह से पुट किए, जब वेन का 50% सॉइल सैंपल के अंदर है एंड 50% सॉइल सैंपल के बाहर है, तो दैट कंडीशन इज vein is partially penetrated. But if the vein is completely penetrated, means the top face and bottom face, both the face is under the soil, then that condition is vein is completely penetrated. ठीक है? Here in this experiment in the laboratory we are performing the condition that vein is completely penetrated into the soil. क्लियर? तो देखो अगर हम लोग इसको मान के चलते दैट इज द जीएल, ग्राउंड लेवल, इसका टॉप लेयर जो है दिस इज द ग्राउंड लेवल, तो वेन क्या है, वेन अंदर में है, दैट इज ए प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द सॉइल, मान के चलते दिस इज द सॉइल, एंड दिस हाइट इज दैट इज द वेन, हाइट ऑफ द वेन, जब एज्यूम दैट इज कैपिटल H, दैट इज कैपिटल H। तो तुम लोग मेरे को बताओ, जो सॉइल्स वंस विल स्टार्ट द टॉर्क इनटू दैट टॉर्क हैंडल, इनटू दैट हैंडल of the attached rod, then
जो शियर स्ट्रेंथ मेरा डेवलप होगा, कहाँ पे शियर स्ट्रेंथ डेवलप होगा, कहाँ पे शियर स्ट्रेंथ डेवलप होगा? अगर वेन मेरा घूमना शुरू किया सॉइल के अंदर, जब मेरा टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ, देन शियर स्ट्रेंथ कहाँ पे डेवलप होगा? सिलेंड्रिकल सरफेस पे सर। एग्जैक्टली, सिलिंड्रिकल सरफेस में मेरा शियर स्ट्रेंथ डेवलप होगा। क्लियर? और कहाँ पे होगा? और बॉटम वाले नीचे सर्कुलर पार्ट। बॉटम वाला पार्ट में होगा। और कहाँ होगा? along the plates. ना, अलोंग द प्लेट्स नहीं होगा। सर पूरा सर अपनी mainly म्यूट होगा। होएगा चैन। हैं? हेलो सर अपनी म्यूट होएगा चैन। म्यूट है कैसे? सर आपको कौन तो म्यूट कर दिया। बहुत झांग लगाते हैं लोग। कौन म्यूट किया रे? पता नहीं चला सर। अच्छा, तो एक तो सिलिंड्रिकल सरफेस में हो रहा है, सेकंड इज बॉटम सरफेस में हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है शियर स्ट्रेंथ? बोलो। अपर सरफेस पे भी सर। एग्जैक्टली, अपर सरफेस। तो जो शियर स्ट्रेंथ मेरा डेवलप हो रहा है सॉइल में, टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस एंड द सिलिंड्रिकल सरफेस, क्योंकि ना वंस इट स्टार्ट रोटेटिंग तो एक कार्व सिलिंड्रिकल सरफेस क्रिएट होगा। ठीक है, उसके साथ दैट वेन्स इज कम्प्लीटली पेनिट्रेटेड इन द सॉइल। वेन जो है मेरा कम्प्लीटली पेनिट्रेटेड है सॉइल में। ठीक है, तो कम्प्लीटली अगर सॉइल के अंदर पेनिट्रेटेड है तो इसका टॉप फेस एंड बॉटम फेस, जो टॉप फेस है बॉटम फेस है, इसमें मेरा शियर स्ट्रेंथ डेवलप होगा, शियर स्ट्रेंथ डेवलप होगा। क्लियर? तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होगा उसमें फेल्योर आ जाएगा, क्योंकि ना मैं घुमा रहा हूँ तो एक सर्टेन टाइम तक क्या होगा, जो सॉइल है वो रेजिस्ट करेगा। एक सर्टेन जो टाइम है, सर्टेन टाइम तक सॉइल क्या कोशिश करेगा, सॉइल जो है सॉइल तो यही कोशिश करेगा जो वो जो वेन्स है, वेन्स ना घूमे, यही उसे कोशिश रहेगा ना। तो इसमें जो भी शियर स्ट्रेंथ होगा, तो उस शियर स्ट्रेंथ सॉइल का जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी शियर स्ट्रेंथ है, वो कोशिश करेगा हमें जो वेन्स है, वेन्स ना घूमे। ठीक है, दैट इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। बट एक टाइम में तो ये आएगा जो सॉइल फेल्योर होगा, तो फेल्योर सरफेस डेवलप होगा इसमें, हाँ या ना? फेल्योर सरफेस डेवलप होगा। तो क्या करना है मेरे को, क्या फाइंड आउट करना है? तो इफ यू फाइंड आउट वंस द टोटल टॉर्क, जो टोटल टॉर्क अप्लाइड हो रहा है कार्व सरफेस में एंड द टॉप बॉटम पोर्शन, टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस, टोटल टॉर्क अगर मेरे को मिल गया तो वी कैन फाइंड आउट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक, तो तुम लोग बताओ, जो टोटल जो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो? F into D। F into D, torque is equal to force into perpendicular distance. So this force is equal to, now we can write this force is equal to stress into area. तो जो कर्व सरफेस है यहाँ पे, जो कर्व सरफेस है यहाँ पे, इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा अभिषेक? सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया क्या होता है? सर 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर एरिया होता है? नहीं सर, कर्व सरफेस पाई है। आर पर एच। पाई आर एच, पाई डी एच। दैट इज द पाई डी एच। डायमीटर हम लोग अगर डी मान के तो पाई डी एच इंटू डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा? डी बाई टू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? डी बाई टू। तो देखो एस दैट इज द स्ट्रेस इंटू पाई डी एच इंटू डी बाई टू। ठीक है सर डी बाई टू कैसे लिए सर? डी बाई टू यहाँ पे जो सिलेंडर, इसको तुम मान के चलो ना, उसका
इसका डायमीटर कितना है, डी है ना, डायमीटर हाँ। कितना है, डी। तो हम लोग इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, डी बाई टू। हाँ तो डी बाई टू हम लोग लिख दिए। तो एस इंटू पाई डी स्क्वायर एच बाई टू, कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा, एस पाई डी स्क्वायर एच बाई टू। क्लियर। हाँ सर। तो इधर वाला जो पोर्शन है, फेस का जो पोजीशन है, टॉप फेस एंड बॉटम फेस, इसका क्या होगा, यहाँ पे कितना फेस है, दो फेस है, टॉप फेस एंड बॉटम फेस। अगर कोई एक फेस का हम लोग एरिया निकाल लिया तो उसका अगर मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन बोथ फेस का जो टॉर्क है मेरे को मिल जाएगा। तो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ ए कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू टॉर्क ऑफ द फेस, कर्व सरफेस एरिया एंड टॉर्क ऑफ फेस एरिया, उसको मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो टोटल मेरे को मिल जाएगा। अब फेस एरिया जो है इसको क्या है, दैट इज द सर्कल टॉप। अगर तुम टॉप पोजीशन से देखो, ऊपर से देखो, तो क्या होगा, जो वेन है, वेन क्या करेगा, इसके ऊपर वाला पोर्शन को सर्कुलर डायग्राम क्रिएट करेगा, हाँ या ना, सर्कुलर डायग्राम हाँ। क्रिएट होगा। तो टॉर्क फेस पोजीशन इज इक्वल टू सेम थिंग, दैट इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स वी हैव अज्यूम द फोर्स इज इक्वल टू एस, दैट इज द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हम लोग ले लिए इंटू स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होगा, सर्कल का, सर्कल का एरिया क्या होगा, इसका अगर हम लोग ले लिए तो 2 पाई आर इंटू डी आर, सर्कमफ्रेंस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो इसको मल्टीप्लाई किए, देखो स्ट्रेस इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू 2 पाई आर डी आर, इसको मान के चलो डी आर। तो देन इसका एरिया क्या होगा, 2 पाई आर डी आर इंटू डिस्टेंस क्या होगा, आर। कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू आर। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन किए तो फाइनली तुमको मिलेगा, देखना कैलकुलेट करके, एस पाई डी क्यूब बाई 12। तो टोटल जो टॉर्क होगा मेरा, दैट इज द एस पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस एस पाई डी क्यूब बाई 12। सो दिस इज द टॉर्क फॉर्मूला। नाउ इन दिस टेस्ट जो डाया वेन है, वेन का जो डायमीटर है, ठीक है, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। इसको याद रखना है तुम लोग को, डायमीटर ऑफ वेन, डायमीटर ऑफ वेन कितना होगा, 1.2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वेन कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे जो स्प्रिंग है तुमको दिखाया था अभी डायग्राम में, जो वेन है उसके साथ स्प्रिंग इज अटैच। तो दैट स्प्रिंग का एक कांस्टेंट का एक वैल्यू है, ठीक है, फॉर दैट पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट विल अज्यूम दैट 7.16 न्यूटन सेंटीमीटर पर रेडियन। रेडियन क्यों हो रहा है, क्योंकि ना विल पुट द रोटेशन, तो रोटेशन क्या होगा, रेडिएशन में होगा, दैट इज द 7.16 न्यूटन सेंटीमीटर पर रेडियन, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन था, T इज इक्वल टॉर्क इज इक्वल टू एस बाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस एस बाई डी क्यूब बाई 12, ठीक। तो यहाँ से एस तुमको मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, तुमको डी कॉमन, डी जो कैपिटल डी है, डी को बाहर कर लो, एस को बाहर कर लो, ठीक है। तो सी स्ट्रेस मेरे को मिल जाएगा। तो फाइनली वी गेट द इक्वेशन लाइक दिस, एस इज इक्वल टू टी बाई पाई इंटू डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस डी स्क्वायर बाई सॉरी डी क्यूब बाई 6। क्लियर, कुछ डाउट है? सेकेंड थिंग, वी नीड टू फाइंड आउट ऑल्सो द टॉर्क। टॉर्क का जो वैल्यू है उसके फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क कैसे मिलेगा, थीटा इंटू के बाई 180। अगर हमको थीटा फाइंड आउट कर लेंगे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उससे, हैं, तो उसको टोटल जो एंगल ऑफ कितना एंगल से उसको रोटेट हो रहा है, उस एंगल को वंस विल फाइंड आउट दैट एंगल, देन वी कैन फाइंड आउट द टॉर्क वैल्यू, ठीक है। तो थीटा इंटू के बाई 180, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑलरेडी गिवन, एंड थीटा
जो थीटा का वैल्यू है, वी नीड टू फाइंड मेजर दैट थीटा वैल्यू। तो थीटा क्या है? थीटा इज द डिफरेंस इन एंगल, थीटा इज द डिफरेंस इन एंगल एंड के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इनिशियल एक रीडिंग लेंगे हम लोग एंड फाइनल एक रीडिंग लेंगे। एक इनिशियल रीडिंग लेंगे, फाइनल रीडिंग लेंगे, देन उसको माइनस करते हैं तो थीटा मिल जाएगा। डी क्या है? डी इज द डाया ऑफ वेन, ऑलरेडी तुम लोग को बोला डी इज द डाया ऑफ वेन, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ वेन 2.4 सेंटीमीटर। टी इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड, तुम जानते ही हो, एंड एस इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हम लोग एक टेबुलेशन बना लेंगे। ठीक है, हम लोग नॉर्मली विल टेक 3 रीडिंग्स कॉन्जिक्यूटिवली, 3 रीडिंग्स हम लोग लेंगे एंड देन उसका एवरेज करेंगे तो फाइनली एक मेरे को शियर स्ट्रेंथ मिल जाएगा एवरेज। इनिशियल एक रीडिंग लेंगे, देखो टेबुलेशन में इनिशियल रीडिंग होगा, देन नेक्स्ट एक फाइनल रीडिंग होगा एंड एंगल ऑफ टॉर्क वी कैन मेजर, दैट इज द इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग। दोनों को माइनस करेंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर देंगे तो एंगल ऑफ टॉर्क मेरे को मिल जाएगा। Once we will calculate the angle of torque, then we can calculate the torque value. So torque is equal to theta into k by 180. Torque is equal to theta into k by 180. तो torque का वैल्यू मेरे को मिल गया, तो then we can easily find out the shear strength of soil. क्योंकि ना टॉर्क का जो वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, t बाई पाई इंटू डी स्क्वायर इज बाई 2 प्लस डी क्यूब बाई 6। एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो यहाँ तक, फिर हम लोग प्रोसीड्यूर में जाएंगे। अभिषेक, सायन, स्वाति। नो सर। सर वो फॉर्मूला लिखे हैं, एस इक्वल टू टी बाई पाई डी स्क्वायर एच प्लस डी क्यू बाई 6। हाँ सर वो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है टाउ के टर्म में। मैंने अभी ये तो बोला ना तुम लोग लास्ट इसमें स्लाइड में कैसे हम लोग शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला निकालते हैं, यही तो चीज़ है ऑलरेडी जो तुम लोग को बोला है। तो फर्स्ट थिंग इज वंस द शियर स्ट्रेंथ, एक तो कार्व सरफेस एरिया में आ रहा है, दैट इज द सिलिंड्रिकल सरफेस में शियर स्ट्रेंथ सॉइल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज द टॉप फेस एंड बॉटम फेस में सॉइल शियर स्ट्रेंथ सॉइल प्रोवाइड कर रहा है। तो दो साइड में मेरे को टॉर्क फाइंड आउट करना है, एक कार्व सरफेस एरिया का और एक फेस एरिया का टॉर्क मेरे को फाइंड आउट करना है। तो दोनों का टॉर्क अगर मैंने निकाल लिया तो टॉर्क इज इक्वल टू, तुम लोग जानते ही हो, दैट इज द स्ट्रेस इंटू क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट योर शियर स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेस है वही तो मेरा शियर स्ट्रेंथ है यहाँ पे, दैट इज द शियर स्ट्रेंथ एस। तो दोनों जगह से हम लोग जो टॉर्क है, यहाँ से भी एक मिल गया, यहाँ से भी एक मिल गया, तो उसको अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ से फाइनल फॉर्मूला आ गया, देखो टॉर्क का। क्लियर? यस। कोई डाउट है? बोल। यस। ठीक है, फिर आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या करना है। तो फर्स्ट हम लोग को क्या बोला है, जो सॉइल में पार्टिकुलरली वी आर यूजिंग द सॉफ्ट टाइप ऑफ क्लेई सॉइल। तो तुम लोग मेरे को बताओ कि क्लेई सॉइल मतलब क्या होता है? क्लेई सॉइल मतलब क्या होता है? क्लेई सॉइल सीप में पास करेंगे, कितना साइज ऑफ सीप कितना होता है क्लेई सॉइल में? साइज ऑफ सीप बॉल सर 2 माइक्रोन। सर 2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन और 10 mm सर। 10 mm। सर 75 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन। हाँ 75 माइक्रोन। नॉर्मली द सॉइल, इफ द सॉइल इज पासिंग 75 माइक्रोन सीप, 75 माइक्रोन सीप के नीचे अगर 75 माइक्रोन सीप अगर पासिंग हो रहा है, ठीक है, दैट इज द क्लेई सॉइल, दैट इज द नॉर्मली दैट सॉइल इज द क्लेई सॉइल। और 4.75 टू 75 माइक्रोन के बीच में जो सॉइल है दैट इज द सैंडी सॉइल, वही तो सैंड होता है ना? यस सर, यस सर। तो यस सर। जो तो बेसिक थिंग, गलती करने से कैसे होगा रे?
तो नॉर्मली हमको 75 माइक्रोन सीप के नीचे जो है उसी को हम लोग क्ले बोलते हैं, बट हेयर 75 माइक्रोन का बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं। 75 माइक्रोन से ऊपर 150 माइक्रोन है, उसके ऊपर 300 माइक्रोन है। तो 300 माइक्रोन जो सीप है, वी आर टेकिंग दैट सीप 300 माइक्रोन, वो भी टेंड्स टू क्ले, ठीक है। तो 300 माइक्रोन जो सीप्स है उसमें हम लोग सॉइल को यहाँ पे क्या किया, सॉइल को ले लिए, सॉइल को पहले डाल दिए, देखो यहाँ पे सीप के अंदर सॉइल को डाले। देन नेक्स्ट थिंग इज once we start sieving, then this is the 300 micron sieve passing soil, 300 micron sieve passing soil, सबको दिख रहा है, is visible to all? यस सर। क्लियर? यस सर। तो इनिशियली हम लोग सॉइल को लिए, कोई भी क्वांटिटी, तुम 1 kg भी ले सकते हो, 500 ग्राम भी ले सकते हो, एक नॉर्मली एक सॉइल को क्वांटिटी ले लो, हाँ, तुम्हारा अंदाज के हिसाब से ले लो। फिर देन वी विल सीविंग दैट सॉइल, ठीक है, बाय 300 माइक्रोन, और यू कैन ऑल्सो सीव 150 माइक्रोन ऑफ सीव, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देन एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी का हम लोग वाटर ले लिए एंड मिक्स दैट सॉइल विद दैट वाटर। क्लियर? तो सॉइल का कंडीशन क्या होना चाहिए? सॉफ्ट क्लेई सॉइल, मीन्स जो सॉइल हम लोग यूज करेंगे इसमें टेस्ट में, दैट इज ए लिक्विड क्लेई सॉइल, लिक्विड टाइप का होगा, ठीक है। देखो हम लोग मिक्स कर रहे हैं, सॉइल को वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, देखो फाइनली इस टाइप का जो कंडीशन जो सॉइल का जो होगा इस टाइप का होगा, ठीक है, लिक्विड टाइप का। जो हम लोग मिक्स करेंगे उसको लिक्विड टाइप का मिक्स करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या करना है? दिस इज द सॉइल सैंपल। जो वेनसियर टेस्ट जो मशीन तुम लोग को दिखाया था ना, जो मशीन था, मशीन के नीचे जो होल था उसमें क्या होगा ना, ये जो पोर्शन था ये वहाँ पे हम लोग अटैच कर देंगे, ठीक है। तो जो सॉइल है, सॉइल को इसमें पोर करेंगे, देखो फिलिंग हो रहा है। क्लियर? एंड फाइनली वी गेट दिस टाइप ऑफ, क्लियर? देख रहे हो कितना सॉफ्ट टाइप ऑफ क्लियर लिया हम लोग। क्लियर? एनी डाउट? ठीक। तो जो सैंपल है, जो वाटर सॉइल सैंपल है, तो सॉइल सैंपल कहाँ पुट करेंगे हम लोग? यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर? देखो दिस इज द वेन, दिस इज द वेन, ठीक, एंड दिस इज द टॉर्सनल स्प्रिंग। ऊपर में जो पोर्शन देखो, दिस इज द टॉर्सनल स्प्रिंग, विल पुट द टॉर्क बाय दिस टॉर्सनल स्प्रिंग, बाय दिस टॉर्सनल स्प्रिंग। और यहाँ पे देखो एक सर्कुलर डिश है, दिख रहा है चीज, एक सर्कुलर डिश है यहाँ पे जिसमें नंबरिंग किया हुआ है, हाँ या ना? यस सर। तो नंबरिंग में क्या होता है, मैंने क्या बोला, जो थीटा मेजर करना है। इन्हीं से कोई भी एक पॉइंट से हम लोग जो एंगल है, रीडिंग जो है, रीडिंग स्टार्ट होगा, सपोज मान के चलो 140 से मेजर हो रहा है या 130 से चल, तो दैट इज द थीटा 1, दैट इज द थीटा 1, ठीक है। फिर हम लोग मशीन को ऑन कर देंगे, तो मशीन अगर ऑन हो जाएगा तो थीटा 130 से मेरा मेजरमेंट शुरू होगा एंड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इनटू द सॉइल, ठीक है। बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत स्लोली होता है। क्यों स्लोली होता है? क्योंकि आपको शेयर रेजिस्टेंस मेजर करना है, कोई भी एंगल में शेयर रेजिस्टेंस फेल हो सकता है। जिस पोजीशन में यहाँ पे देखना, ये जो है ना, दिस डायरेक्ट, यहाँ पे 2 है, इसमें ना 2 रहेगा, वो दिखा रहा हूँ, देखो एक, देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, दिख रहा है, एक अपर की है, एक लोअर की है, विजिबल टू ऑल? Yes, sir.
तो क्या होगा, दो का क्या काम है, एक जो पार्ट है, एक उस पार्टिकुलर मतलब जिस पोजीशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनिशियली दोनों सेम पॉइंट में रहेगा। सपोज मान के चलो 150 में 50 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियल पोजीशन इज 150, सो 150 जो पॉइंट होगा उसमें दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे, हम लोग एक साथ रहेगा, ठीक। देन हम लोग स्विच को ऑन किए, जो सर्कुलेट इट इज स्टार्ट रोटेटिंग वेरी स्लोली। जो जिस पॉइंट में मेरा फेलियर होगा, जिस पॉइंट में मेरा फेलियर होगा उस पॉइंट से देखो कैसे होगा, उस पॉइंट में क्या होगा, ये जो अपर वाला पोर्शन है ना, अपर वाला जो की है, जिस पॉइंट में मेरा फेलियर होगा उस पॉइंट से बैक होगा। सपोज 150 से हम लोग स्टार्ट किए, दोनों को 170 तक गए दोनों, ठीक है। सो 170 हम लोग मान के चलते हैं, जो 170 डिग्री इज द फेलियर पॉइंट, तो 170 इज द फेलियर पॉइंट। सो 170 जो रीडिंग है, 170 रीडिंग में एक जो हमारा प्ले है, एक उसी पॉइंट में फिक्स रहेगा, एंड सेकेंड वन जो रहेगा उस पॉइंट से 170 डिग्री पॉइंट से बैकवर्ड में आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये जो दिस इज द हैंडल, बेसिकली जो ब्लैक टाइप का सर्कल तुम लोग को दिख रहा है, दिस इज द हैंडल। इससे क्या होता है, इससे जो वेन है ना, जो वेन का जो रॉड्स है, इस रॉड को हम लोग सॉइल में पेनिट्रेट करते हैं, सॉइल को इससे ऊपर नीचे कर बाय द यूज ऑफ दैट सर्कल, हाँ, बाय द यूज ऑफ दैट ब्लैक सर्कल वी कैन अप एंड डाउन दैट टॉर्क, सॉरी अप एंड डाउन दैट वेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सॉइल है, सॉइल में हम लोग उसको पुट कर दिए बाय रोटेटिंग दैट ब्लैक सर्कल। ये जो है इसको अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो नीचे आएगा, तो सॉइल सैंपल को यहाँ पे रखे, देन हम लोग उसको लॉक कर दिए, क्लियर। फिर इसको हम लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। जो वेन है, वेन कहाँ जा रहा है, सॉइल के अंदर जा रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, अच्छा। देन नेक्स्ट देखो, टोटली फुल्ली पेंटेड इनटू सॉइल, मैंने क्या बोला, दो कंडीशंस था, फर्स्ट वन इज फुल्ली पेंटेड एंड सेकंड वन इज पार्शियली पेंटेड। अगर पार्शियली पेंटेड होता तो क्या होता, इस टाइप का होता, दैट द बॉटम सरफेस ऑफ द वेन इज पेंटेड इन द सॉइल बट द टॉप सरफेस इज नॉट पेंटेड इन द सॉइल, ठीक है। एंड सेकंड थिंग दैट इज द फुल्ली पेंटेड। नाउ क्या करेंगे हम लोग, वी विल स्टार्ट द, देखो यहाँ पे ऑफ है, इसको अगर हम लोग ऑन कर देंगे, नेक्स्ट इसको ऑन कर दिए, जो मशीन से मशीन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे दोनों देखो, दोनों जो पॉइंटर है, दोनों पॉइंटर एक पॉइंट में फिक्स है, ठीक है। नाउ द मशीन इज स्टार्ट, तो इट इज स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक। तो देखो 160 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, 158 से हम लोग स्टार्ट किए थे, सॉरी 150 बोलो, 150 से हम लोग स्टार्ट किए थे। इनिशियल पॉइंट कितना था, 150 में था, इनिशियल पॉइंट कितना था, 150 के 50 में था, ठीक। देन नेक्स्ट 150 में था, किस पॉइंट में मेरा एंड हो रहा है, 175 में आगे एंड हुआ है, फेलियर हुआ है, तो फेलियर पॉइंट इज 175। जो अपर जो किया, अपर की देखो बैकवर्ड हुआ है, बैकवर्ड होकर 160 में 60 में 160 में कितने में है, 159 160 ऑलमोस्ट उसी पोजीशन में, ठीक है। तो फाइनल फास्ट इनिशियल पॉइंट इज 150 एंड द फाइनल पॉइंट इज 175, क्लियर। फाइनल पॉइंट कितना 175 और इनिशियल पॉइंट में कितना हुआ था 150। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, अभिषेक? यस सर। एनी प्रॉब्लम? सर उसका वर्किंग अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा। कहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है बोलो, पार्टिकुलरली कौन सा पोजीशन में नहीं क्लियर हो रहा है बोलो। सर वो जो पेनिट्रेट कर रहा है सॉइल के अंदर, मतलब उसका प्रोसीजर अच्छे से समझ में ही नहीं आ रहा कि वो किस वे से वर्क कर रहा है, कौन सा पहले जा रहा है, उसके बाद से सेकेंड लेयर कैसे वर्क कर रहा है और कितना पे कैसे कैसे पता चलेगा और रीडिंग कैसे लेंगे स्पेशली। ये क्या है, वेन्स है, ये क्या है, वेन्स,
ये भेंस है। यस सर। तो मैंने क्या बोला, सॉइल सैंपल हम लोग, तुम लोग देखे हो ना लास्ट स्लाइड में, सॉइल सैंपल को हम लोग कैसे रेडी किए हैं, मिक्स करके वाटर के साथ। सर अभी साउंड नहीं दिखाया आ ना? रहा। अभी तुम लोग को दिखाया ना, अभी कहाँ था तब? सॉइल सैंपल को हम लोग प्रिपेयर किए कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले? ये सॉइल सैंपल को हम लोग प्रिपेयर किया ना? यस सर। सॉइल सैंपल को प्रिपेयर किए, जो सैंपल है उसमें हम लोग पोर किए उसको, जो सैंपलर है उसमें हम लोग सॉइल को पोर किए, ठीक है। फिर लेवल कर लिए उसको, जो सैंपलर है उसको लेवल किया हम लोग। नेक्स्ट क्या करेंगे? यस सर। नेक्स्ट जो होल है इस पोजीशन में इसको लॉक करेंगे, जो पार्टिकुलर जो पोजीशन यहाँ पे दिख रही है, जो पोजीशन है इस पोजीशन में सैंपलर को हम लोग लॉक करेंगे डाल के। उसमें एक बेस प्लेट है तो उसको हम लोग रख दिए उसके अंदर, देखो ये जो यहाँ पे रख दिए, देन उसको हम लोग लॉक कर दिए। दिस इज द लॉकिंग अरेंजमेंट। ये जो दोनों दिख रहे हैं ना, ये जो दोनों पॉइंट है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है, दैट इज द लॉकिंग अरेंजमेंट। इससे ये जो प्लेट है, प्लेट लॉक हो जाएगा। क्लियर? यस लॉक हो सर। गया, दोनों पॉइंट लॉक हो गया। फिर देखो यहाँ पे स्विच है, स्विच ऑफ था, उसको हम लोग ऑन कर दिए। अच्छा, उसके पहले ऑन करने से पहले और एक चीज, जो भेन्स है, भेन्स को हम लोग क्या किए, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट किए। कैसे पेनिट्रेट किए? जो हैंडल तुम लोग दिख रहे हो मैडम के हाथ में, जो हैंडल है सर्कुलर हैंडल, ये जो हैंडल है, यस सर। इसको अगर तुम रोटेट करोगे ना, इफ यू स्टार्ट रोटेटिंग दिस सर्कुलर प्लेट, तो ये जो नीचे जो रॉड है, जो भेन्स जो अटैच है रॉड के साथ, ये नीचे आएगा। बेसिकली ये सर्कुलर जो प्लेट है, सर्कुलर प्लेट को रोटेट करके हम लोग क्या करते हैं, रॉड को अप एंड डाउन कर सकते हैं। भेन्स को, भेन जो है, भेन को तो सॉइल सैंपल के अंदर पेनिट्रेशन करना है, हाँ या ना? तो इसको घुमाएंगे तब ना जाके वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होगा। क्लियर? हाँ सर। तो पेनिट्रेट हो गया, और घुमाया तो फुल्ली पेनिट्रेट हो गया, अंदर तक आ गया। क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मशीन को ऑन कर देंगे। तो मशीन को एक बार ऑन कर देंगे, तो मैंने क्या बोला, मशीन को ऑन करने से पहले और एक चीज, जो पॉइंटर है, इनिशियल जो पॉइंटर था, पॉइंटर कहाँ पे था? इधर दोनों जो ये सर्कुलर डिश है, दिस इज सर्कुलर डिश, सर्कुलर डिश में दो पॉइंटर मेरा है, सर्कुलर डिश में दो पॉइंटर है। मान के चलो दोनों पॉइंटर मेरा जीरो में है। कौन सा डिवीजन में है? जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों पॉइंटर जीरो से है। क्लियर? अब क्या हो रहा है, अब मशीन टॉर्क हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मशीन स्टार्ट कर दिए, टॉर्क अप्लाई हो रहा है, घूम रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है। तो एक तो ऐसा टाइम आएगा, ये सॉइल जो है, सॉइल का रेजिस्टेंस फेल करेगा। স্যার আপনার আওয়াজ কেটে যাচ্ছে স্যার, हाँ, আওয়াজ কেটে কেটে আসছে। सुनते पाচ্ছিস ना? नेटवर्क इशू होगा। अब सुनाई दे रहा है? হ্যাঁ স্যার। तो एक तो इस ऐसा टाइम आएगा जो सॉइल्स है, सॉइल फेलियर होगा। एक सर्टेन टाइम में क्या होगा, मेरा सॉइल फेलियर होगा, सॉइल फेल करेगा। तो सॉइल जो फेल होगा, तो सॉइल फेल होगा, मेरे को कैसे समझ में आएगा? हम लोग जीरो पॉइंट से दोनों पॉइंट जीरो में है, उसके बाद टॉर्क हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, जो भेन्स है, भेन्स घूम रहा है, ठीक है। बट एक सर्टेन पॉइंट आएगा जिस पोजिशन में सॉइल फेलियर होगा, मीन्स शियर रेजिस्टेंस सॉइल का फेल करेगा। तो दैट पॉइंट, जो फेलियर पॉइंट मेरे कैसे समझ में आएगा? ये उस पार्टिकुलर पॉइंट में मेरा फेल कर रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, या फिर एक्स वाई जेड जो भी पॉइंट से मेरा स्टार्ट हो रहा है इनिशियल रीडिंग। तो जो लास्ट पॉइंट, जिस पॉइंट में जाके, जिस पॉइंट में फेलियर होगा, तो दोनों जो पॉइंटर है, दोनों पॉइंटर में एक पॉइंटर उसी पॉइंट में फिक्स रहेगा। सपोज मान के चलो जीरो से स्टार्ट हुआ, 20 डिग्री एंगल में, 20 डिग्री जो एंगल है मेरा, या फिर 20 डिग्री जो डिवीजन है, 20 डिग्री डिवीजन में जाके तुम देख रहे हो जो पार्टिकुलरली एक पॉइंटर 20 में है, और एक जो पॉइंट ऊपर वाला पॉइंटर था वो रिवर्स किए है, वो रिवर्स किए, जो तुम लोग का भी दिखा है। यहाँ पे देखो एक पॉइंटर इस पोजिशन में फिक्स है, इस पोजिशन में फिक्स है, सेकेंड वन हैज बीन रिवर्स, ठीक है। रिवर्स करके मान के चलो कोई भी एक एक्स वाई जेड पॉइंट में आए, वो 20 में फिक्स था, रिवर्स करके 15 में आया,
14 में, जो भी है ये जो रिवर्स जो पॉइंटर है, रिवर्स पॉइंटर के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे को रीडिंग चाहिए फाइनल वन। इनिशियल वन था 0 एंड फाइनल वन 20 मैंने बोला, तो 20 डिग्री एंगल इज द फाइनल रीडिंग। क्लियर? यस सर। किसी को डाउट? तो क्या होगा, इससे एंगल ऑफ थीटा मेरे को मिल जाएगा, थीटा एंगल ऑफ थीटा मेरे को मिल जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो वंस थीटा 2 माइनस थीटा 1 मेरे को मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा, मैंने क्या बोला था सेकंड में इनिशियली, टॉर्क कैसे होगा, टॉर्क इजिकल टू थीटा इंटू के बाई 180, यही था ना, थीटा इजिकल टू के बाई थीटा इंटू के बाई 180। तो थीटा मेरे को मिल गया यहाँ पे थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू टॉर्सनल स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज द के, दैट इज 7.16 डिवाइड बाई 180। तो टॉर्क हैज बीन डिटरमाइंड। तो टॉर्क मेरे को मिल गया, तो फिर मेरे को सियास्टेन का जो इक्वेशन है, सियास्टेन के इक्वेशन में डाल दो। तुम लोग एच जानते ही हो, हाइट ऑफ वेन 2.4, डी जानते हो 1.2, तो सारा वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो सियास्टेन मेरे को मिल जाएगा। एनी डाउट? हेनसियर टेस्ट में किसी को कोई डाउट? नो सर। मैडम 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 सर। हाँ कुछ बोलो। सर सीयर फेल्योर में होता क्या सर, जिस टाइम पे वो रोटेट करना बंद कर देगा? सीआर फेल्योर मैंने क्या बोल रहा हूँ, 4 टाइप का डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग सीआर स्टेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 टाइप का टेस्ट है ना, इसका प्रोसीड्यूर अलग है, टेस्ट भी अलग है। वेन शियर टेस्ट में हम लोग कैसे होता है, वेन शियर टेस्ट हम लोग प्रोसीड्यूर दिखा है। तो वेन शियर टेस्ट में जिस पॉइंट में फेलियर होगा, जिस पॉइंट में फेलियर होगा उस पॉइंट से जो दोनों पॉइंट आता है, एक पॉइंटर रिवर्स बैक होगा। और तुम लोग बोलो दैट इज द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तुम लोग बोलो थियोरेटिकली कैसे होगा, तुम लोग पूछोगे थियोरेटिकली कैसे होगा, तो थियोरेटिकली अगर तुमको समझाना पड़ेगा, फिर तुमको मोर सर्कल जो डायग्राम था याद है, मोर सर्कल डायग्राम, उसमें हम लोग फेल्यूर एनवलप ड्रॉ करते थे। हाँ सर। तो वो जो फेल्यूर एनवलप है वो बेसिकली वही तो चीज़ है शियर स्ट्रेस में। ये जो सैंपल है, सैंपल में कोई भी एक सॉइल है, तो कोई भी सॉइल का एक सर्टेन जो टाइम है, एक सर्टेन टाइम तक उसका शियर स्ट्रेस वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्टेन टाइम तक शियर स्ट्रेस मेजर कर सकते हैं, उसके बाद वो मेजर नहीं कर सकते शियर स्ट्रेस, उसमें फेल्यूर डेवलप होगा। अगर तुमको कोई फोर्स देगा तो तुम्हारा तो एक लिमिट है फोर्स का पावर ये करने का, एक टाइम के बाद तुम क्या होगा, तुम गिर जाओगे। सेम चीज़ सॉइल में भी सेम चीज़ है, उसका भी शियर स्ट्रेंथ एक लिमिट है, उसके बाद उस पर फेल आएगा, फेल्योर डेवलप होगा। समझा उत्कर्ष? यस सर। कोई डाउट? नो सर। और किसी को कोई डाउट है? अनुज, अरिजीत, अयन, अनिक? नो सर। और कोई डाउट नहीं? ऋतिक, ऋतिक यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके। मैडम কিছু বলবেন? मैडम मैडम শুনতে পাচ্ছেন? मैडम शायद नहीं है। ठीक है चलो फिर, ठीक है, तो वेन-शियर टेस्ट हो गया हम लोग का, और नेक्स्ट फिर जो भी है सर कराएंगे फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। क्लियर? थैंक यू। चलो ठीक है। थैंक यू सर।
ठीक चलो ओके